Welcome, students, to the class. Welcome, very welcome. Hello students, welcome in today's class. Now students, in this class we are going to take another important topic of this lesson, and that is types of volcano. Students, in the earlier class, it means the by video, we have already learned about the volcano and its eruption, how volcano erupts and what are the causes of volcano eruption, and with diagram. Hope you understood all the topics related to volcano eruption, and it was the most important question of the point of view of the examination, and it questions come into the uh, examination for the 5 marks. Okay, at longest answer type questions. Now students, we take the next topic related to volcano, and that is type of volcano. Students, this is the most easiest answer of this questions, and there should be no any difficulty to understand this answer. Once listen carefully, and you can easily write the answer of these questions on the type, on the points. Okay, on the basis of points. Earlier we have already discussed on various types of questions, and it's only keep your mind all the points, and you can easily write the answer of that questions. Okay, now students, there are three types of volcano. Here you can see that there are three types of volcano. What are types? First is active volcano. First is active volcano. Here I am showing you some pictures of all the types of volcano. Okay, you can see behind me, and the first type is active volcano. Second type is sleeping or dormant volcano. Sleeping or dormant volcano. And third type is dead or extinct volcano. Okay, now students, listen carefully again. There are three types of volcano. First is active volcano. First is active volcano, यानी सक्रिय ज्वालामुखी. Second is sleeping or dormant volcano. Sleeping यानी प्रसुप्त या अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी. And the third and last volcano is dead or extinct volcano, यानी प्रसुप्त या मृत विसुप्त प्राय. या और शांत ज्वालामुखी. प्रसुप्त विसुप्त या volcano या शांत extinct यानी शांत ज्वालामुखी. ज्वालामुखी. यह है ऐसे ज्वालामुखी के प्रकार और उसके हिंदी में कुछ नामकरण. ओके, होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल दिस टाइप्स ऑफ volcano, its name. Now, in next step, we are going to discuss on all the types of volcano and their definitions. Okay, now we learned that there are three types of volcano. First is active volcano, सक्रिय ज्वालामुखी. Second is sleeping or dormant volcano, यानी प्रसुप्त या डॉर्मेंट. प्रसुप्त यानी अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी. एंड लास्ट इज डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी डेड यानी मृत. इसी तरह से मृत है ना, जैसे अपने पहले भी ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस कर चुके थे. तो डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी इसको बोलेंगे विसुप्त या शांत वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. नाउ स्टूडेंट्स, वी टेक फर्स्ट पॉइंट, एंड that is active volcano. That is active volcano. Then the definition of active volcano: the volcano which erupt, the volcano which frequently erupts, that is known as active volcano. Simple definition of this volcano: the volcano which frequently erupts, that is known as active volcano. And most of the active volcano are found in Italy. तो एक्टिव या सक्रिय वॉल्केनो की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? कि ऐसे वॉल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर उद्भेदित होते रहते हैं एक निश्चित अंतराल में. आज हुआ, इसके 10 दिन बाद होगा, उसके और फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद होगा, कुछ महीनों बाद होगा, पर ये होते रहते हैं. ऐसा नहीं, इसमें समय समय पर इरप्शन की जो प्रोसेस है इट कंटिन्यूस, वो निरंतर चलती रहती है. यानी स्टूडेंट्स,
एक्टिव वॉल्केनो की डेफिनेशन है द वॉल्केनो विच फ्रीक्वेंटली इरप्ट्स, यानी इट्स नोन एज और कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो, यानी ऐसे ज्वालामुखी जो एक निश्चित समय के अंतराल पर उद्भेदित होते रहते हैं, इरप्ट होते रहते हैं, ऐसे वॉल्केनो को सक्रिय वॉल्केनो कहा जाता है। और इसका उदाहरण है बेटा इटली। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर फाउंड, ऑल टाइप्स ऑफ वॉल्केनो इज फाउंड इन इटली, ओके, एंड पैसिफिक ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेसेस, कोस्टल एरिया ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भी बहुत सारे ओशियन, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द previous class 6 or 7 types of ocean, how many oceans are there, how many continent of there, है ना। तो most of the volcano are found in Pacific Ocean also and most of the Italy. So the first point is active volcano. And what is the definition of active volcano? The volcano which frequently erupts are known as active volcano. Okay, now students, we move to the second point. Second type of volcano is sleeping or dormant volcano, यानी प्रसुप्त या डॉर्मेंट यानी अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन उसके बेस पर हम बना सकते हैं। व्हाट विल बी द डेफिनेशन? लिसन केयरफुली। स्लीपिंग और डॉर्मेंट volcano, the volcano which were erupting earlier, but now they suddenly erupt, are known as sleeping or dormant volcano, okay। तो these are called हाफ एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्क्यू, अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अर्ध सक्रिय। हाफ एक्टिव वॉल्केनो, वो फुल एक्टिव था, ये हाफ एक्टिव है, यानी ये पहले इरप्ट होते थे, पहले उद्भेदित होते थे, पर अब क्या होते हैं, सडनली कभी कभी हो जाते हैं, है ना। एक बार हो गए, फिर कभी महीने 2-4 महीने के बाद ऐसे ये क्या होता है, इनमें ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया स्टार्ट रहती है, कंटिन्यूस रहती है, पर बहुत कम अंतराल में, फ्रीक्वेंटली नहीं, ये बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर इरप्शन। तो दूसरा क्या पढ़ा बेटा हमने? स्लीपिंग वॉल्केनो और डॉर्मेंट वॉल्केनो। तो स्लीपिंग वॉल्केनो है द वॉल्केनो विच इरप्टेड इन द अर्लियर बट नाउ दे इरप्टेड सडनली, है ना। तो ऐसे वॉल्केनो को हम लोग कहते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनो। तो ऐसे ज्वालामुखी जो पूर्व में तो क्या होते थे, इरप्शन होता था, उद्भेदित होते थे, परंतु अब क्या हो रहा है उसमें, अब वो सडनली अचानक कभी कभी हो जाते हैं। तो ऐसे वॉल्केनो को हम कहते हैं क्या? स्लीपिंग और डोरमेंट वॉल्केनो, स्लीपिंग और डोरमेंट वॉल्केनो। नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टू द थर्ड पॉइंट। द थर्ड टाइप्स ऑफ वॉल्केनो इज, यू कैन सी हियर, एंड दैट इज डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी मृत या विसुप्त या एक्सटिंक्ट यानी शांत ज्वालामुखी। तो इसको हम लोग सिंपल, अगर आपको फर्स्ट 2 डेफिनेशन याद है किसकी, एक्टिव वॉल्केनो एंड स्लीपिंग वॉल्केनो, तो उसके बेस पर आप लिख सकते हो। कैसे? द वॉल्केनो विच इज नाइदर एक्टिव nor sleeping or dormant from long time, which has not erupted for long time. A volcano which is neither active nor dormant and which has not erupted for long time and there is no any possibility to eruption is called dead volcano. माने ऐसे ज्वालामुखी जो ना तो एक्टिव है ना डॉर्मेंट है और कई लंबे समय से इनमें कभी उद्भेदन नहीं है और भविष्य में भी इसकी संभावना नहीं है उद्भेदित होने की, यानी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन ऑफ वॉल्केनो इन द फ्यूचर, यानी कुल मिला के ये पूरे एकदम मृत प्राय है।
माने डेड है, एंड एक्सटिंक्ट है, शांत है, अब इसमें कभी उद्भेदन नहीं होगा, तो ऐसे वॉल्केनो कहलाते हैं। कौन से वॉल्केनो बेटा? डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। सिंपल डेफिनेशन है, द वॉल्केनो विच आर नाइदर एक्टिव नॉर sleeping and there is no any possibility of eruption, that types of volcanoes called dead or extinct volcano। हो गया, ये खत्म हो गया वॉल्केनो के प्रकार। समझ में बेटा आपको? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, सेकंड इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनो, एंड थर्ड इज डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो एक्टिव वॉल्केनो फ्रीक्वेंटली इरप्टेड, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो। स्लीपिंग वॉल्केनो अर्लियर इरप्टेड बट नाउ सडनली इरप्ट, कभी पहले होते थे पर अब क्या है, अचानक कभी कभी होते हैं, इरप्ट होते हैं यानी उद्भेदित होते हैं, तो स्लीपिंग और डॉर्मेंट। एंड थर्ड डेड वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, नाइदर एक्टिव नॉर स्लीपिंग एंड देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्टिंग इन फ्यूचर, so such type of volcano called dead or extinct volcano। okay students, hope you understood better all this point। now student, we take another most important topic related to volcano and that is merits and demerits of volcano, यानी ज्वालामुखी के लाभ और हानि, ज्वालामुखी के लाभ और हानि। अब हम लोग ये सब कॉसेस देखने वाले हैं, क्या क्या? ज्वालामुखी के लाभ और हानि, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वॉल्केनो। स्टूडेंट्स, हियर वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट this same answer you can also write in the earthquake question. What are the merits and demerits of earthquake? Same, both for the earthquake and volcano, same question and same answer will be remain। okay, दोनों के लिए एक जैसा आंसर रहेगा, एक आंसर याद करो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वॉल्केनो। यू कैन ऑल्सो राइट दिस सेम आंसर इन द टॉपिक ऑफ earthquake। okay, now students, we first see the merits of volcano। we see the merit of volcano first। अब लाभ क्या है? ये वॉल्केनो इरप्शन है, उसके लाभ क्या है, उसके क्या मेरिट्स है? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वॉल्केनो इरप्शन? सो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्टाइल लैंड। वी आर discussing with short point and on the basis of short point you can easily write the sentence। first point क्या है बेटा हमारा? फर्स्ट पॉइंट है फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि। तो पहला पॉइंट क्या होगा? सम टाइम फर्टाइल लैंड्स इमर्ज। क्या होता है? कभी कभी फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि भी इसमें से क्या होती है? इमर्ज होती है, उपजाऊ भूमि भी बनती है। इसका क्या हो गया? पहला पॉइंट फर्टाइल लैंड। तो इसके बेस पर कैसे लिखेंगे? सम टाइम फर्टाइल लैंड इमर्ज यानी कभी कभी उपजाऊ भूमि का भी निर्माण इसमें होता है वॉल्केनो इरप्शन। पहला पॉइंट हो गया, सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक दो बार पढ़ोगे या एक दो बार ये वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत जल्दी ये पूरा टॉपिक ही याद हो जाएगा, है ना? सो डोंट टेक एनी टेंशन। नाउ सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट इज न्यू लैंड फॉर्म्स। क्या होता है इससे? ड्यू टू वॉल्केनो इरप्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड फॉर्म्स, यानी ज्वालामुखी उद्भेदन से कुछ नए स्थल आकृतियां बनती है, न्यू लैंड फॉर्म्स बनती है। किससे? ज्वालामुखी उद्भेदन से। तो हमने देखे थे लैंड फॉर्म, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। फर्स्ट इज माउंटेन, सेकंड इज प्लेट्यूज एंड प्लेन, है ना? तो इसी टाइप्स के सम माउंटेन्स और प्लेट्यूज और प्लेन्स, ऐसे लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? वॉल्केनो इरप्शन में आपका इमर्ज होते हैं या फॉर्मेशन होता है इसका। तो वो स्पीड ऑफ वॉल्केनो के अनुसार होती है। कैसे होता है? तो सेकंड पॉइंट हो गया सम टाइम। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा हमारा? सम टाइम फर्टाइल लैंड्स इमर्ज यानी उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है जो खेती के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, यानी उस एरिया के जो लोग हैं उनको क्या होती है? काफ़ी सारी ज़मीन मिल जाती है। किसके लिए? फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। एंड कैसी जमीन? व्हाट टाइप्स ऑफ लैंड? फर्टाइल। सम टाइम फर्टाइल लैंड्स इमर्ज। एंड सेकंड पॉइंट से फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, वेरियस लैंड फॉर्म्स, और बहुत सारी स्थल आकृतियों का भी निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट
थर्ड पॉइंट है वैल्यूएबल मिनरल्स आर आल्सो फाउंड। इसमें क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य खनिज का भी हमको इसमें क्या होती है, प्राप्त होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, सिंपल है कि लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लाइंग एरिया। लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लाइंग एरिया। समझ में आ गया आपको? तो मेरिट क्या है, लाभ क्या है ज्वालामुखी के? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वोल्केनो? फर्स्ट पॉइंट, फर्टाइल लैंड, सम टाइम फर्टाइल लैंड्स इमर्ज, उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट इज लैंड फॉर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन। माने वोल्केनो इरप्शन ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण क्या होता है, बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा फर्टाइल लैंड, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, लैंड फॉर्म्स। थर्ड पॉइंट वैल्यूएबल मिनरल्स, ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स आर आल्सो फाउंड। माने बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी हमें इससे प्राप्त होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ लेक, फॉर्म ऑफ लेक यानी ऐसी झीलों का निर्माण होता है। देखे होंगे आपने, पोखर बोलते हैं उसको, झील बोलते हैं, या झीलों का उसमें क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ पर? लो लाइंग एरिया में। क्योंकि क्या होता है, वॉल्केनो ऐसा बहुत एक ऐसा माउंटेन के टाइप से इरप्शन होता है और उसमें से बहुत सारा वाटर भी, वेपर भी हमने पढ़े थे उसमें, वाटर, हॉट वाटर, वो भी निकल के क्या नीचे से जाता है। और वाटर जो लो लाइंड एरिया है उसके नीचे जो लोग रहते हैं उसमें कुछ एरिया में वो क्या हो जाता है, उसमें वो ऐसे झील बन जाती है। तो उससे क्या होता है, लोगों को, उस एरिया के लोगों को कुछ पानी के सोर्सेज भी, वाटर सोर्सेज भी प्राप्त हो जाते हैं। तो यह है कुछ वॉल्केनो के क्या ये मेरिट्स है। तो क्या हो गया बेटा, पहला मेरिट्स फर्टाइल लैंड, लैंड फॉर्म्स, थर्ड है हमारा वैल्यूएबल मिनरल्स, एंड फोर्थ है इसमें हमारा कौन सा, वाटर रिजर्वरीज, या उसको हम बोल सकते हैं लेक्स। Lakes are also formed due to volcano eruption. So these were the some merits of volcano. Now students, as the volcano have some merits, there are also demerits as well. जैसे वॉल्केनो को कुछ लाभ है, मेरिट्स है, तो ऐसे ही वॉल्केनो को क्या है बेटा, वॉल्केनो की कुछ डीमेरिट्स यानी हानियां भी हैं, लाभ और हानि। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स ऑफ वॉल्केनो। तो आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्या होगा पहला डीमेरिट्स, क्या होगी इसकी पहली हानि, क्या होगा इसका डिसएडवांटेज। फर्स्ट, लॉस ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी, यानी बहुत से लोग इसमें मारे जाते हैं। जो उस एरिया में इतना लावा वगैरह फैल जाता है, अगर लोग क्या है अवेयर नहीं है, वहाँ पे जागरूक नहीं, कभी कभी क्या हो सकता है कि इन द नाइट, रात में भी वॉल्केनो इरप्शन हो जाता है, तो लोग सोए रहते हैं, तो वो उसमें भी उनको पता नहीं चलता है, और ऐसी लॉस ऑफ लाइफ होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन होता है, और साथ ही प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है इसमें। सही है। और उसके बाद क्या होता है कि लॉस ऑफ पीपल, एनिमल्स पेरिश, बिल्डिंग, रेलवेज, रोड्स ऑफ फैक्ट्रीज सफर बैडली। माने उस एरिया के जो लोग हैं, उस एरिया के जो एनिमल्स है, उस एरिया की जो रेलवे लाइन है, उस एरिया की कुछ इंडस्ट्रीज है, ये सारी इसमें सफर होती है। किससे? ड्यू टू वॉल्केनो इरप्शन से। फिर सेकंड पॉइंट है बेटा, डिवास्टिंग फ्लड ऑक्योर्स। इससे क्या होता है, कभी कभी देखो, हमने देखा है कि वाटर बहुत आता है इसमें, तो क्या कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो उस एरिया में, जो लो लाइंग एरिया में बहुत सारा पानी भर जाता है, और वहाँ पर रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, इसमें बाढ़ में बह जाते हैं, या उनके जो प्रॉपर्टी है, उनके जो घर है, हाउसेस है, वो भी क्या हो जाते हैं, इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लॉस ऑफ पीपल, एनिमल एंड रेलवे ट्रैक्स, अदर फैक्ट्रीज एट दैट एरिया। सेकंड पॉइंट्स, ड्यू टू फ्लड्स, डिवास्टेड ऑफ फ्लड्स, यानी बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है, तो उससे क्या होता है, तो हाई एंड डिवास्टिंग एरिसीज वेव्स राइज। तो इससे क्या होता है, रिवर रूट्स हो जाता है, हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव्स राइज। और इससे क्या होता है, जो समुद्र है, वो आजू बाजू जो वाटर है, उसमें बहुत बड़ी लहरें भी उठती है, तो उससे भी ये क्या होता है, कुछ लॉस होता है प्रॉपर्टी का। और थर्ड पॉइंट है हमारा, क्रैक्स डेवलप इन लैंड एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक्स। तो वॉल्केनो के कारण क्या होता है, क्रैक्स आ जाती है,
और क्रैक्स आने के कारण अर्थक्वेक का भी यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है बेटा, हमने पहले देखे इसमें आज हमने कि मेरिट्स तो आपको समझ में आ गए पूरे, अब डीमेरिट्स एक बार फिर देख लो। तो लॉस ऑफ ह्यूमन, loss of people, animals, some railway tracks also affected and other industries also affected due to volcano eruption. Second time, devastating floods, यानी बहुत सारी बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने के कारण होता है कि लो लाइंग एरिया जो है वहाँ पर रहने वाले पीपल, देयर प्रॉपर्टी आल्सो गॉट डैमेज हो जाती है। और कुछ उस आजू बाजू जो समुद्र वगैरह है तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें चलती है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी लहरें उठती है उसके कारण। तो उससे क्या होती है, जो शिप्स रहते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा इसका, थर्ड पॉइंट है कि वॉल्केनो इरप्शन के कारण कुछ इट गेट सम क्रैक्स, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, और वहाँ पे संभावना हो जाती है भूकंप आने की। और उससे क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन हो जाता है, और उसके कारण बहुत से घर और बहुत सी जो उस तरह की प्रॉपर्टी है, लोग हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, वो लैंड फॉर्म्स में दब जाते हैं। इससे सीधा सीधा एक ही पॉइंट है इसमें कि लॉस ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड रेलवे ट्रैक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज एरिया एंड earthquake due to volcano eruption. There is a possibility of earthquake and there is also so much loss of life of human and other devastating floods. बहुत सारी बाढ़ भी आ जाती है and due to floods most of the area gets down and damage of another peoples and animals and the property. So these were the some demerits of volcano. Students, hope you understood better all these points. Very simple points all this, and this is very most important question of the point of view of the examination. So listen carefully, watch this video again and again 2 or 3 times. You can easily watch and then read the question answers which you have written in your textbook. Okay, so this question will be very much easy. So if any queries or difficulty, you can call me, you can ask me any questions on my WhatsApp queries. Okay, student, now the next class we shall meet with new topics. Okay, till then, goodbye.